Hello students, this is Yasas Ali on the platform of one-to-one tuition, and today once again I am here in front of you to teach class 6 social science session 4 of chapter 2. So students, let's we discuss first the previous session task. In previous session I have given one task to you where you had to make one grade and you have to mark some places on that grid. मतलब हमने आपको कुछ एक ग्रेड ये स्केल दिया था जिसको आपको ग्रिड बनानी थी और उस पर कुछ प्लेसेस को मार्क या लोकेट करना था. लेट्स सी दैट थिंग एंड देन वी विल मूव फर्दर. ओके Students, here we have to mark Paris at 48 degree north and 2 degree east, Berlin at 52 degree north and 13 degree east, and then prime meridian 0 degree ये हमको मार्क करना था. So let's make the grid first. So this is the grid and this is the degrees pointed out. In this grid we have to locate very first the what? सबसे पहले पेरिस 48 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को मार्क करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, और उसके बाद हम पॉइंट आउट करेंगे 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, और देखेंगे जहाँ पर ये दोनों बोथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करती हैं, that intersecting point will be the place of the Paris. Got it? And now we will locate the Berlin at 52 degree north and 13 degree east. So very first we will locate the latitude 52 degree north, and then we point out the longitude 13 degree east, and we will check out where both latitude longitude intersect each other. That point will be the place of the Berlin. Now understood? Match your answer with this. And now last, prime meridian. Prime meridian already you know 0 degree prime meridian, so this is 0 degree prime meridian. So I hope you would have been match your answer with my answer and then know the correct things. So I hope you would have been match your answer, your scale, your places with the given solution on the screen. Now let's move. Very first we will recap what we have learned in previous session. We have learned in previous session about longitude, important longitudes, how to make a grid, and how to locate the places in that grid. These things we have learned in previous session. So before moving today's session, let's discuss some queries. Students, do you know what is the date is today? Yes, it is 27 July. Everyone knows. And what is the time in India right now? What is the time where you are living? I think it is 10. I think it is 12:07 p.m. So can you imagine? Yeah, do you know what would be the time in the other countries in right now? Just check it and go to Google and just check it the time of the London and time of Dubai and time of Washington, USA. Just Google it, check it, and then tell me. Then I will let you know what we are going to learn today. So I think you have checked all the time, but tell me, can you tell me one by one? Just tell me first what would be the time of London and what is the date. There is also 27 July 2020 and time 7:37 AM. You can see there. What would be the time in Dubai, UAE? There is also July 27 and time is 10:38 AM. Now tell me the time of the Washington and date. Here you see the date in Washington, there is 26 July and the time is 11:38 p.m. Means अब what you have observed here, आपको
क्या समझ में आ रहा है, क्या कंफ्यूजन आ रहा है? Here one thing we can observe, these all places experience the different time from each other. मतलब सभी प्लेसेस का टाइम एक दूसरी की प्लेस से डिफरेंट है। और हम वॉशिंगटन भी देखते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर तो एक दिन पीछे है, वहां पर 26 जुलाई और हम लोग 27 जुलाई में हैं। एंड टाइम भी डिफरेंस देखो, किसी में 12 आवर्स का डिफरेंस है, कहीं पे कुछ आवर्स का डिफरेंस है, कहीं पे ज्यादा डिफरेंस है, कहीं पे कम डिफरेंस है। तो व्हाई डज इट हैपन एंड हाउ डज इट हैपन? आई थिंक दिस कंफ्यूजन कम्स इन योर माइंड. Yes. So these are confusion we will resolve in our today's session. कि why does these all things happening? क्यों वर्ल्ड के सारे कंट्रीज का टाइम सेम नहीं होता है, अलग अलग टाइम होता है? क्यों ऐसा होता है? This is because of the longitudinal position. As you know, the every country, every places on the earth have their own longitudinal position. उनकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या डिफरेंट होती है, सेम होती नहीं, इसलिए ये डिफरेंस होता है. बट हाउ डू वी नो, कैसे हम जानते हैं ये डिफरेंस होता है और कितना डिफरेंस होता है, ये हम कैसे हमको कैसे पता लगेगा? सो लेट्स लर्न अबाउट दिस. पहले हम इसको पढ़ेंगे. बिफोर दैट कैन यू टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन? सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. लॉन्गिट्यूड और टाइम में कनेक्शन क्या है, कैसे लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस जो है वो टाइम में डिफरेंस क्रिएट करती है. एंड देन कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन अपनी कंट्री का, अपनी प्लेस का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेसिक टाइम क्या है जिससे ये कैलकुलेशन की जाती है. एंड देन वी विल लर्न टाइम जोन्स. टाइम जोन्स क्या है? And then we will move towards the international date line and what? Indian Standard Time. So this is how our session 4 will be completed. Understand? So let's come to know about the longitude and time. What is the connection between them? So as previous session we have learned about how latitudes and longitudes help to locate the places. And there are two important longitudes. 0 degree prime meridian and 180 degree international date line. So here I'll tell you why these two both lines known as important longitude. As I'm telling to you, the 0 degree prime meridian is used for the determining the time of all the places of the world. 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, ये जो है पूरे वर्ल्ड के सारे प्लेसेस के टाइम को डिटरमाइन करने में यूज की जाती है. एंड इट इज आल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्ल्ड. मतलब दिस इज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, दिस इज द बेसिक लाइन, दिस इज द बेस टू डिटरमाइन ऑफ ऑल द प्लेसेस टाइम इन द वर्ल्ड. सो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड time meridian. As you know, it passes through Greenwich in London, so that it is known as Greenwich Mean Time. इसको Greenwich Mean Time के भी नाम से जाना जाता है. और although this 0 degree prime meridian is the standard time in the whole world, so it is known as universal time. इसको 0 degree prime meridian को universal time का नाम दे दिया गया. So do you know how 0 degree prime meridian is important longitude? Because of this. Now we calculate the time. Means how all longitude. So 0 degree prime meridian longitude is important because of this. But how other longitudes helps to determine the time? Actually, the all longitudinal position of the places. Yeah, you can say the distance of all longitudes from 0 degree meridian create the difference in the time. अब हम ये कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे. Here we need to know the calculation of time या calculation of standard time, which is 0 degree Greenwich Mean Time.
इसका कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड इजीली कि कैसे टाइम में डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन. So I am telling you, as you know, the earth rotates on its axis and take 24 hours to complete one round, one circle. One circle means 360 degree. मतलब अर्थ को 360 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. इफ वी डिवाइड 360 बाई 24, 360 डिग्री को 24 में डिवाइड करते हैं तो हम कितना, हाउ मच विल गेट 15. मतलब अर्थ मूव 24, अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट 360 डिग्री. तो 1 आवर में कितने डिग्री मूव करेगी? 15 डिग्री. अंडरस्टैंड? तो 1 आवर में 15 डिग्री मूव करती है, दैट मीन्स 15 डिग्री मूव करती है. अंडरस्टैंड? अब 16 से 15 डिग्री मूव करती है मीन्स अर्थ टेक 16 मिनट टू कंप्लीट 15 डिग्री. सो अब 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा अर्थ को? मतलब अर्थ, हाउ मच टाइम द अर्थ विल टेक टू कंप्लीट 1 डिग्री. सो वी विल डिवाइड 60 by 15, then we will get 4. So that means 1 degree equal to 4 minutes. What does it mean? It means the earth take 4 minutes time to complete 1 degree movement. अब यहाँ पे हमको समझना है कि अर्थ क्या है, 1 डिग्री मूवमेंट करने में उसको 4 मिनट का टाइम लगता है. तो सेम थिंग इज हेयर. मत मीन्स कि एवरी 1 डिग्री इंटरवल the time, how much time will be difference 4 मिनट का टाइम का डिफरेंस. हम 0 डिग्री ग्रीन टाइम से या 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट हेमिस्फीयर में बढ़ेंगे और वेस्ट हेमिस्फीयर में जब मूव करेंगे तो एवरी 1 डिग्री पे हमको 4 मिनट का टाइम डिफरेंस मिलेगा. अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्गिट्यूड क्रिएट द डिफरेंस इन द टाइम बिकॉज ऑफ दिस. Every 1 degree interval, the difference, you can get the difference of 4 minutes. Now one example I am giving you. With this example you can understand better. Suppose 0 degree prime meridian में 12 PM, कितना बजा है? 12 बजे है. अब we move 15 degree east hemisphere and same, मतलब 15 degree west hemisphere में move करते हैं. So what would be the time at 15 degree east longitude and 15 degree west longitude? As you know, so 1 degree take 4 minutes, then 15 degree will how many minutes will take? 60 minutes is 1 hour. मतलब जब हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस होगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे 15 डिग्री तो 1 आवर का डिफरेंस होगा. अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी समझना है कि 1 आवर का डिफरेंस तो होगा, लेकिन 1 आवर किस हेमिस्फीयर में कम किए जाएंगे, किस हेमिस्फीयर में ऐड किए जाएंगे. मतलब किस हेमिस्फीयर 1 आवर अहेड होंगे, टाइम ज्यादा होगा, और किस हेमिस्फीयर में 1 आवर टाइम कम होगा. सो आई एम टेलिंग यू, व्हेन वी मूव फ्रॉम 0 डिग्री मेरिडियन टू ईस्ट हेमिस्फीयर, then we always gain the time, मतलब always add the time, whatever the difference comes according to longitude position, we add that time. तो अब हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ 15 डिग्री मूव करते हैं तो 1 आवर का डिफरेंस होता है. तो ये 1 आवर क्या करेंगे, हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को जो टाइम हुआ उसमें ऐड कर देंगे. तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में कितना टाइम हुआ था? 12 PM. तो हम 1 आवर ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 1 PM. तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में 12 बजे है, here will be the 1 PM. Okay. अब when we move west hemisphere from 0 degree prime meridian 15 degree, then what will be the time there? वहाँ कितना टाइम होगा? तो वहां पर क्या होगा? 1 आवर लूज कर देंगे. तो यहाँ पर 12 PM हुआ तो 1 आवर कम करके तो यहाँ पर कितना टाइम होगा? 11. Understand? So here is one question. One question comes in my mind. I think this question also comes in your mind. कि why we add the time when we move in east hemisphere from 0 degree prime meridian, and why we lose the time when we move
from 0 degree prime meridian to west. ऐसा क्यों करते हैं? What is the reason behind? Actually, you know, we all know that the earth move west to east. Earth जो है west to east की तरफ move करती है. And the places which are located in eastern hemisphere, they experience the sunrises first. And the places which are located in western hemisphere, they experience sunrises later rather than the eastern hemisphere places. मतलब जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है तो जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट हेमिस्फीयर का पार्ट है, इसको सनराइजेस पहले एक्सपीरियंस हो जाता है इन प्लेसेस को, और इन प्लेसेस को सनराइजेस बाद में एक्सपीरियंस होता है. तो जहां सूरज पहले निकलेगा वहां पर टाइम पहले आएगा, और जहां सूरज बाद में निकलेगा, सन बाद में निकलेगा, वहां पर टाइम बाद में होगा एज यूजुअल. सो क्या होता है, कॉज ऑफ दिस थिंग द ईस्टर्न हेमिस्फीयर प्लेसेस एट द टाइम व्हेन दे मूव फ्रॉम 0 डिग्री eastward, so that they gain the time, they add the time. And cause of this, the westward means west hemisphere places will lose the time when they move from 0 degree prime meridian to west hemisphere. Understand why we will add and lose the time when we move east and west from 0 degree meridian? That's very good. Now, so what we have learned so far? We have learned what longitude और time का connection क्या है, and how longitudes are create matter making difference in the time of all places, and why we add the time when we move towards east hemisphere and why we lose the time when we move towards western hemisphere. So I hope you would understood better. आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. Now I am giving one task to you. Suppose on 0 degree prime meridian there is a 3 p.m. कितना बजा है? 3 p.m. हुआ. When we move to east 45 degree, what would be the time on 45 degree longitude? And move 30 degree west, so what would be the time in 30 degree longitude in west? Just calculate it and tell me. I am waiting. Pause the video and do it, because after explanation we must do some tasks, so we will understand all the things. We must practice something. So I hope you have calculated. Can you tell me what would be the time? Here we have to move 45 degrees. Then how much difference will be there? Is 3 hour difference. So what would be? We will add or lose. We will add here. So here will be the time is 3 plus 3 इक्वल टू 6 pm. यहाँ कितना टाइम होगा 45 डिग्री के? 6 pm होगा. और वहां पर हमने 30 डिग्री मूव किया था वेस्ट में, तो कितना डिफरेंस क्रिएट होगा? तब क्रिएट होगा 2 आवर का डिफरेंस. तो हम 2 आवर ऐड करेंगे, लूज करेंगे. तो हम 2 आवर जब 3 pm में लूज करेंगे तो कितना टाइम होगा यहाँ पे? 1 pm. That's your answer. If your answer is 1 pm and 6 pm, that is correct. So I hope you have understood well. Now come to know about the time zone. कि टाइम जोन्स क्या होता है. अब one thing I'm telling you कि if all the places follow the time according to their longitude position, what would be happen? Suppose कि I'm telling why we need time zone. टाइम जोन की जरूरत क्यों होती है? So if all the places according to their longitude position they will follow the time, it leads the lot of confusion. अब कैसे confusion होगा? Suppose the Russia, China, they contains the many longitudes. They are very vast countries. India also very vast countries and containing lot of number of longitudes. So that I am giving one example here. Suppose I am telling 2 cities name of India and their longitude position. Then I will tell you the confusion. What confusion comes if the all places follow the time according to their longitude position. The longitude position के according जो time create होता है, that is called local time of that place. वो उस place का local time होता है. So suppose Dibrugarh in Assam, located 60
located 95 east. Okay, and Dwarka in Gujarat located 68 degree east. तो अब both are the city of India, लेकिन दोनों की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है, वो डिफरेंट है. तो अब लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन डिफरेंट है, तो दोनों का लोकल टाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन डिफरेंट होगा. तो अब अगर डिब्रूगढ़, द पर्सन हु आर लिविंग इन डिब्रूगढ़ एंड पर्सन हु आर लिविंग इन द्वारका, दे विल फॉलोइंग देयर ओन लोकल टाइम. तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. अब कैसे कंफ्यूजन होगा? सपोज जैसे कि डिब्रूगढ़ है 95 है और वो 68 डिग्री ईस्ट पर है, तो द्वारका जो प्लेस इज द्वारका है वो 1 घंटे 45 मिनट पीछे है डिब्रूगढ़ के टाइम. अगर उनका टाइम डिफरेंस देखा जाए तो टाइम डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट. तो अगर सपोज कि कोई पर्सन जो द्वारका से 5 बजे निकला है एक ट्रेन पकड़ के, तो अब वहाँ का वो पर्सन दूसरे पर्सन को जो डिब्रूगढ़ में रहता है उसको क्या बताएगा कि मैं कितने बजे निकला? वो बताएगा मैं 5 बजे निकला हूँ. तो अब जो डिब्रूगढ़ में जो पर्सन है जो उसको रिसीव करने आने वाला है वो टाइम कैलकुलेट कैसे करेगा? सपोज 5 घंटे में वो पहुँचती है ट्रेन, तो अब वो कौन से 5 घंटे में ऐड करेगा? किसके टाइम में? अपनी क्लॉक के टाइम में ऐड करेगा, क्योंकि वो डिब्रूगढ़ में रहता है, और या वो 5 घंटे ऐड करेगा द्वारका वाले पर्सन के क्लॉक के अकॉर्डिंग. ये कंफ्यूजन होता है. तो इसीलिए क्या हुआ है कि टू अवॉइड दिस ऑल कंफ्यूजन, अब जैसे यहाँ पर एक और चीज है, कोई लाइव टेलीकास्ट होना है, सपोज द्वारका से लाइव टेलीकास्ट होगा और वहां से वो लाइव टेलीकास्ट का टाइम 12 PM है, उनका लोकल टाइम. तो अब डिब्रूगढ़ वालों को कितने बजे वो लाइव टेलीकास्ट दिखाई देगा? तो है ना कंफ्यूजन यहाँ पर. सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, द ऑल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टिंग देयर स्टैंडर्ड टाइम. वो स्टैंडर्ड टाइम कैसे अडॉप्ट करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड मेरिडियन. अब स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे फिक्स होती, कैसे डिसाइड होती है? अकॉर्डिंग टू दी टाइम जोन. अलग अलग टाइम जोन्स के नियर बाय जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है उस प्लेस की, उस कंट्री के प्लेस की, अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव डिसाइडेड देयर स्टैंडर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू दैट मेरिडियन. अब यहाँ पर टाइम जोन्स की नीड पड़ती है. तो आई एम टेलिंग यू द अर्थ डिवाइड इन सेवरल टाइम जोन्स अकॉर्डिंग टू दी लॉन्गिट्यूड पोजिशन. इसमें 24 टाइम जोन्स में डिवाइड. देयर आर 24 टाइम जोन्स ऑन दी अर्थ. मतलब 24 टाइम जोन्स है. अब डिवाइड करो 360 से, तो आफ्टर एवरी 15 डिग्री, मतलब आफ्टर एवरी 1 आवर पर एक नया टाइम जोन. अंडरस्टैंड? मतलब आफ्टर एवरी 15 डिग्री देयर इज अ न्यू टाइम जोन, या यू कैन से आफ्टर 1 आवर डिफरेंस ऑफ टाइम देयर इज अ 1 टाइम जोन. देयर आर 24 टाइम जोन ऑन द अर्थ. सो अब हर 15 डिग्री पे एक नया टाइम जोन होता है, नया टाइम जोन होता है आफ्टर 1 आवर के डिफरेंस पे. अब उस टाइम जोन, उस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड की पोजीशन पे जितने भी कंट्रीज होते हैं वो उस नियर बाई टाइम जोन के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स करते हैं अपनी कंट्री की एक कोई प्लेस अकॉर्डिंग टू एनी प्लेस. स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करते हैं. उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग क्या होता है? द कंट्री डिसाइड देयर ओन स्टैंडर्ड टाइम एंड दैट स्टैंडर्ड टाइम विल फॉलो फॉर दैट होल कंट्री. अब सेम स्टैंडर्ड टाइम विल बी फॉलोड फॉर होल प्लेस ऑफ कंट्री. सो दिस टाइप ऑफ कंफ्यूजन इज नॉट क्रिएटेड. कंफ्यूज क्रिएट नहीं होता. आप सेम टाइम फॉलो करेंगे, सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करेंगे तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. सेम टाइम पे टेलीकास्ट होगा, सेम टाइम पे रेलवे का टाइम टेबल होगा, सेम टाइम पे अदर टाइम टेबल होगा. तो दिस इज वाई द टाइम जोन इज रिक्वायर्ड एंड स्टैंडर्ड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंट्री, फॉर एवरी प्लेस. अंडरस्टैंड? इफ स्टिल सम कंफ्यूजन you can just comment, then I will clear your all the doubts, because this is very confusing topic.
This topic is very confusing. You have to think, you have to see, you have to watch this video very carefully. If still some confusion in your mind, you can comment on this video and I will solve your queries and I will clear your doubts. Now come to know about the international date line. अब हम international date line की बात कर रहे हैं, which is 180 degree east. Understand? So इसको international date line क्यों कहा जाता है? Because when, एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि when east bound traveler and west bound traveler, first we take the example of east bound traveler, मतलब the person who is living in eastern hemisphere. If east bound traveler cross the international date line, अगर वो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करता है तो उसको अपनी क्लॉक में एक कैलेंडर डेट क्या होगी, वो माइनस करनी पड़ेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा. हाउ एंड वाई? बिकॉज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से और 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन तक देयर आर 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड कवर करता है, कवर होती है. और 180 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 4 मिनट से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिनट से, तो वी विल गेट 12 आवर, मतलब 12 आवर का डिफरेंस हो जाएगा. अब जब 12 आवर का डिफरेंस हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू 0 डिग्री मेरिडियन वी क्रॉस दैट इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, देन वी हैव टू चेंज आवर कैलेंडर डेट. अपनी कैलेंडर की डेट चेंज करनी पड़ेगी और टाइम भी चेंज करना पड़ेगा. अब ईस्ट बाउंड ट्रेवलर अगर क्रॉस करता है तो उसको 1 डे बिफोर जाना पड़ेगा. एंड वेस्ट बाउंड ट्रेवलर अगर उस 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो उसको 1 डे अहेड जाना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? सो दैट दिस लाइन 180 डिग्री नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है बिकॉज इट लोकेटेड जस्ट अपोजिट ऑफ द 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. And 180 degree east and 180 degree west, both longitude located on same place. दोनों एक दूसरे के over to each other. जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के प्लेसेस हैं that they consider 180 degree east, and the places which are in western hemisphere they consider 180 degree west. Understand? So that it is known as international date line. Okay, now what is left? Indian Standard Time. As I already told to you about Indian Standard Time. What is Standard Time? Standard Time is the time of the particular country decided by the standard meridian with the help of nearby time zone. To avoid the confusion of the time according to different longitudinal position of that place. बस एक कंट्री में एक कंट्री की एक ही लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन नहीं होती है, उसमें कई प्लेसेस होते हैं और सभी प्लेसेस की लॉन्गिट्यूड पोजीशन अलग अलग होती है. और अलग अलग लॉन्गिट्यूड पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम फॉलो करेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा. सो दैट द ऑल कंट्री डिसाइडेड टू व्हाट अडॉप्ट वन स्टैंडर्ड टाइम एक अडॉप्ट किया है, जो कि कैसे होता है ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू कि वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड करते हैं. उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, वो डिफरेंस वो क्या करते हैं ऐड और लेस लूज कर देते हैं टाइम में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के टाइम में. एंड इन दिस वे दे कैन गेट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री या दैट पर्टिकुलर एरिया. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया इज कंसिडर्ड the standard meridian 82.5 degree which is located in Allahabad. 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर किया है. अब 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को हम 0 डिग्री से डिफरेंस निकालेंगे टाइम का, तो वी विल गेट 5 आवर 30 मिनट अहेड, क्योंकि इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है तो वो हम क्या करेंगे, टाइम ऐड करेंगे, गेन करेंगे. तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से डिफरेंस निकालेंगे तो वी विल गेट 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस मिलेगा, और वो भी अहेड.
5 आवर 30 मिनट हमको ऐड करने का। तो जितना भी टाइम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे होगा, जीएमटी पे होगा, इन विच मीन टाइम, इसको जीएमटी भी बोलते हैं, दैट कीप रिमेंबर इन योर माइंड। तो जितना भी टाइम यहाँ पर होगा उसमें 5.5 घंटे या 5 आवर 30 मिनट को टाइम हम ऐड करके अपने कंट्री का टाइम डिसाइड करते हैं। चाहे द्वारका 68 डिग्री इस पे हो या डिब्रूगढ़ 98 ईस्ट पर हो, देयर इज नो मैटर, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड द स्टैंडर्ड टाइम विच इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री। तो अब जो ट्रेन 5 बजे द्वारका से चलेगी और 5 घंटे के बाद डिब्रूगढ़ पहुंचेगी, तो जो पर्सन हु इज वेटिंग टू रिसीव द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द द्वारका से आ रहा है, तो वो उसी 5 घंटे उसी टाइम में, जो स्टैंडर्ड टाइम, उसी टाइम में 5 घंटे ऐड करके वेट करना शुरू करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी टेलीकास्ट होगा तो सेम टाइम पे टेलीकास्ट होगा, चाहे डिब्रूगढ़ में 12 बजे होना है तो डिब्रूगढ़ का में 12 बजेंगे और द्वारका में भी 12 बजेंगे, द सेम टाइम विल बी देयर। अंडरस्टैंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंड। अगेन आई एम टेलिंग, इफ स्टिल सम कंफ्यूजन इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, we have to study very carefully. You can comment on my video and I will resolve your query and clear your all doubts. So this is how our session completed and chapter completed. In this chapter we have learned a lot of things: latitudes, longitudes, important latitudes, important longitudes, heat zones of the earth, time zones, calculation of time, international date line, Indian standard, a lot of things we have learned. Now time to recap what we have learned in this session. So today we have learned about the longitude and time, what is the connection between longitude and time, how the longitudes create difference in the time, why 0 degree prime meridian is considered important longitude, what is the important, what role it is playing to calculate the time, calculation of standard time, time zones and Indian standard time. These are all the things we have learned in today's session. I hope you would be understanding all the things. Now time to some practice work. I am giving some practice work. This is on my screen. Please note down it in your notebook and do it carefully. And next section I will start our new chapter. Till then, thank you very much. Have a great day ahead.